آج ہم بس کی سیر یہ پاٹھ جو ہے وہاں پڑھنے والے ہیں. اوکے. تو آپ کے اسکرین پر دکھ رہا ہے پاٹھ 10واں ہے بس کی سیر. ٹھیک ہے. ہم میں سے کئی سارے لوگوں نے بس کی سیر کی ہے. اور بس جب ہم بس میں بیٹھتے ہیں تو جاتے سمے ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ پیڑ بھاگ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک گاؤں آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اور بس کی ونڈو سے کھڑکی سے باہر دیکھنا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ سب بھاگتا اور سب ہر جگہ ہریالی، کھیت کھلیہان، باہر کے لوگ، یہ سب ہم آرام سے بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتے ہیں. تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب ہم سیر کرتے ہیں تب. تو ہمارے پاٹھ کا نام ہی بس کی سیر ایسا ہے. تو ایک لڑکی ہے یہاں پر، ولی امائی اس کا نام ہے، اور اس کو بس میں سیر کرنا بڑا اچھا لگتا ہے. تو اس کے بارے میں ہی ولی امائی نے ہمیں کچھ جانکاری دی ہے. ٹھیک ہے. تو آج ہم پڑھتے ہیں بس کی سیر. ایک تھی لڑکی، نام اس کا ولی امائی، 8 برس کی تھی. اسے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر سڑک کی رونق دیکھنا بڑا اچھا لگتا تھا. مطلب وہ جو تھی گھر میں ہی رہتی تھی دن بھر، اس کے گھر میں کوئی نہیں رہتا تھا، اور وہ جب گھر کے دہلیز مطلب دروازے پر کھڑی رہ کر جب دیکھتی تھی تو باہر گاؤں، چھوٹا سا گاؤں تھا وہ، تو باہر سے ایک بس آ کر شہر کی اور جاتی تھی. تو اسے وہ دیکھنا بڑا اچھا لگتا تھا. اور سڑک پر جو آتے جاتے لوگ ہوتے ہیں، گاڑیاں آتی رہتی ہے، الگ الگ لوگ جاتے ہیں، وہ سب دیکھنا اسے بڑا اچھا لگتا تھا. ولی مائی کو اپنا نام بھی بڑا اچھا لگتا تھا. ویسے دنیا میں ایسا کون ہوگا جس کو اپنا نام پسند نہیں ہوگا؟ ہر کسی کو اپنا نام بڑا پسند ہوتا ہے. سڑک پر ولی امائی کی عمر کا کوئی ساتھی نہیں تھا. اپنی دہلیز پر کھڑے رہنے کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اور پھر اس کی ماں نے اسے سخت تاکید کر رکھی تھی کہ وہ کھیلنے کے لیے اپنی سڑک چھوڑ کر دوسری سڑک پر نہ جائے. مطلب اس کی ماں جب باہر جاتی تھی تو وہ اپنی بیٹی کو بتا کر جاتی تھی کہ تو گھر کے باہر بالکل نہیں جائے گی، کیونکہ باہر سیدھا سڑک ہے، سڑک مطلب راستہ، روڈ ہے، اور وہاں پر کچھ بھی نقصان تمہیں ہو سکتا ہے. تو آپ باہر کھیلنے کے لیے مت جاؤ، صرف گھر پر ہی بیٹھے رہو. ٹھیک ہے. یہ سخت تاکید اس کی ماں اسے دے کر جاتی تھی. سڑک پر سب سے زیادہ آکرشت کرنے والی وستو قصبے کی بس تھی، جو ہر گھنٹے ادھر سے گزرتی تھی. ایک دفعہ جاتے ہوئے اور ایک دفعہ لوٹتے ہوئے ہر بار نئی نئی سواری سے لدی ہوئی بس کا دیکھنا ولی امائی کو کبھی نہ ختم ہونے والی خوشی کا خزانہ تھا. مطلب قصبے کی اور جانے والی ایک بس وہاں سے اس کے گھر کے سامنے سے ہی ہر روز گزرتی تھی، اور اس بس کو دیکھنا ولی امائی کو بڑا ہی اچھا لگتا تھا. اور اس میں ہر روز نئی نئی سواریاں ہوتی تھی، تو اس کو وہ بھی بڑا اچھا لگتا تھا. وہ دیکھنا نئے نئے لوگ، نئی نئی سواریاں، مطلب اس کے اندر بس جو پیسنجر ہوتے ہیں وہ اسے کہا جاتا ہے سواریاں. تو وہ جو بس تھی وہ بڑے اس کو بڑا ہی آکرشت کرتی تھی. اور جب اس کو اب ٹائمنگ بھی پتا ہو چکے تھے کہ کتنے بجے وہ بس یہاں سے گزرتی ہے، کتنے بجے، سب کچھ اس کو پتا تھا. تو وہ دہلیز پر کھڑے کھڑے اس بس کو ہمیشہ دیکھتی رہتی تھی. وہ روز وہاں بس کو دیکھتی، اور ایک دن ایک ننھی سی اچھا اس کے ننھے سے دماغ میں گھس کر بیٹھ گئی. کم سے کم ایک بار تو وہ بس کی سیر کرے گی ہی. ننھی سی اچھا بڑی اور بڑی ہوتی چلی گئی. مطلب وہ بس کو دیکھ دیکھ کے اس کو اچھا ایسا لگنے لگا کہ اب اسے اس بس میں بیٹھنا ہے. ننھی سی اچھا تھی کہ مجھے بھی ایک بار بس میں بیٹھ کر کہیں گھومنے جانا ہے. اس کو یہ بڑی حسرت تھی. ولی بڑی حسرت سے ان لوگوں کی طرف دیکھتی جو سڑک کے نکڑ پر بس سے اترتے چڑھتے. جہاں پر بس آ کر رکتی تھی ان کے چہرے اس کے دل میں سو اچھائیں، سپنے اور آشائیں جگا جاتے.
اس کی کوئی سخی سہیلی جب اسے اپنی بس یاترا کا قصہ سناتی، شہر کے کسی درشیہ کا حال بتا کر ڈنگے ہانکتی، تو ولی جل بھن جاتی، گھمنڈی گھمنڈی وہ چلاتی۔ چاہے ولی اور اس کی سہیلیوں کو اس شبد کا ارتھ معلوم نہیں تھا، پھر بھی اس کا بے دھڑک استعمال کرتی۔ تو وہ جو ولی تھی وہ کیا کرتی تھی، تو وہ ہمیشہ ہی مطلب اس کو ہمیشہ ہی وہ مطلب جو اس کی سہیلیاں اس بس سے باہر گزرتی ہوئی تو اس سمے وہ آنے کے بعد جب اس کو بتاتی کہ میں نے بس سے یہ دیکھا وہ دیکھا، تو ولی کو بڑا ہی غصہ آتا تھا اور وہ ان بچوں کو گھمنڈی گھمنڈی کر کے چڑھاتی تھی، چلاتی تھی۔ اس کو وہ بالکل پسند نہیں تھا کیونکہ ولی ابھی تک ایک بار بھی بس میں نہیں بیٹھی تھی، ٹھیک ہے۔ دنوں دن مہینوں مہینے مطلب کافی سارے دن کافی سارے مہینوں کے بعد ولی نے بس یاترا سے سبندھت چھوٹی موٹی جانکاری گاؤں سے کبھی کبھار شہر جانے والے اور بس میں پرائے سفر کرتے رہنے والے یاتریوں کی آپسی بات چیت سے پراپت کر لی تھی۔ اس نے آپ بھی کچھ لوگوں سے اس بارے میں سوال پوچھے تھے، مطلب ہر روز وہ بس کو یہاں وہاں جاتے دیکھتی تھی اور اسے اب اس کی اچھا ہو رہی تھی کہ میں بھی، جیسے ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ اس کی اب چھوٹی سی اچھا تھی کہ میں بھی ایک بار بس میں جاؤں، لیکن بس میں جانا کیسا ہے، وہ بس کہاں جاتی ہے، کہاں سے آتی ہے، یہ ساری جانکاری اس نے کیا کیا دھیرے 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 کسی کسی کو پوچھ کر، مطلب جو اس بس سے جاتے ہیں بس سے آتے ہیں ان سے مل کر وہ ساری جانکاری اس نے حاصل کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شہر اس کے گاؤں سے کوئی 10 کلومیٹر دور تھا۔ ایک اور کا بھاڑا تھا 30 پیسے، اس کا مطلب جانے اور لوٹنے دونوں اور کے 60 پیسے۔ شہر تک پہنچنے میں بس کو پونے گھنٹہ لگتا تھا۔ شہر پہنچ کر اگر وہ بس میں ہی بیٹھی رہے اور 30 پیسے اور چکا دیں تو اسی بس میں بیٹھی بیٹھی واپس بھی آ سکتی ہے، یعنی اگر وہ گاؤں سے دوپہر 1 بجے چل دے تو 1:45 بجے شہر پہنچے گی اور پھر اسی بس سے وہ اپنے گاؤں کوئی 3 بجے لوٹ آئے گی۔ مطلب دیکھو اس نے سب جانکاری حاصل کی تھی کہ اس گاؤں کا مطلب اس گاؤں سے شہر جانے کا کرایہ کتنا ہوگا، یہاں سے بس نکلتی ہے اس کے بعد کتنی دیر کے بعد وہ وہاں پر پہنچتی ہے، یہ ساری جانکاری اس نے حاصل کی تھی۔ اس نے حاصل کیا تھا کہ اس کا بھاڑا جو تھا ون سائڈ ٹیرف، مطلب ایک جانے کا بھاڑا تھا 30 پیسے اور آنے کا بھاڑا تھا 30 پیسے، اور اس نے یہ بھی پتہ لگایا تھا کہ پونے گھنٹہ مطلب 45 منٹس اس کو لگتے ہیں شہر پہنچنے میں، اور پھر وہاں سے یہاں آنے میں 45 منٹس، تو ٹوٹل وہ وہاں جا کر 3 بجے تک لوٹ آ سکتی ہے۔ تو یہ جانکاری حاصل کی تھی۔ اسی پرکار وہ حساب پر حساب لگاتی رہی، یوجنا پر یوجنائیں بناتی رہی، مطلب اس نے جانے آنے کا حساب لگایا، ٹائم کا حساب لگایا، لوگوں کو سب پوچھا اور ایک یوجنا مطلب ایک اپنے من میں ایک تیاری کی یوجنا بنائی کہ وہ اس کے بارے میں کیا کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پلان کیا، یوجنا کی مطلب پلاننگ کی۔ ایک دن کی بات ہے جب یہاں بس گاؤں کی سیما پار کر کے بڑی سڑک پر پرویش کر رہی تھی، ایک ننھی سی آواز پکارتی ہوئی ایکسکیوز می میم، سنائی۔ یس بولو بیٹا، بولو۔ میم آپ کی آواز تھوڑی بریک ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آئے گی دھیرے دھیرے، اوکے۔ میم کچھ نیٹ ورک، یس میم کین یو میوٹ یور ادر ڈیوائس؟ اوکے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں سے چلتے ہیں، یہ پیراگراف ریپیٹ کرتے ہیں۔ ایک دن کی بات ہے جب یہ بس گاؤں کی سیما پار کر کے بڑی سڑک پر پرویش کر رہی تھی، ایک ننھی سی آواز پکارتی ہوئی سنائی دی، بس کو روکو، بس کو روکو۔ ایک ننھا سا ہاتھ ہل رہا تھا، مطلب وہ بس جو تھی وہ آئی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی
नन्ही सी जान मतलब एक छोटी सी बच्ची या फिर बच्चा बस को रोको, बस को रोको ऐसा पुकार रहा था और हाथ हिला रहा था। बस धीमी हो गई। कंडक्टर ने बाहर झांका और कुछ तुनक कर कहा, अरे भाई, कौन चढ़ना चाहता है? उनसे कहो कि जल्दी करें। सुना तुमने? मतलब वो कंडक्टर देख रहा था कि बाबा कौन है जो हाथ हिला रहा है और बस में चढ़ना चाहता है। तुनक्कर मतलब थोड़ा सा गुस्सा होकर ही उसने देखा और कहा कि आप जल्दी भी आ सकते थे। और फिर आगे बस में वो कहते, बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे शहर जाना है और यह रहा तुम्हारा किराया, उसने रेजगारी दिखाते हुए कहा। मतलब वो नन्ही सी जो जान थी वो बाहर आ रही थी और उसने हाथ हिलाया, बस रुकी और कंडक्टर थोड़ा तुनक कर उसके बोला कि अरे भाई, कौन चढ़ना चाहता है और जल्दी नहीं आ सकता क्या? तो उतने में ही वो नन्ही सी जान थी वो गाड़ी में आई और वो कहती कि मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मुझे शहर जाना है और ये रहा उसने उसका किराया दिया, बस का भाड़ा दिया और उसने रेजगारी दिखाते हुए, रेजगारी मतलब छुट्टे पैसे, ठीक है, रोजगारी मतलब काम होता है, रेजगारी मतलब छुट्टे पैसे, कुछ छुट्टे पैसे दिखाते हुए उस कंडक्टर को दिखाते हुए कहा कि मैं शहर जाना चाहती हूँ। ठीक ठीक, पहले बस में चढ़ो तो, कंडक्टर ने कहा और फिर उसे धीरे से उठाकर बस में चढ़ा दिया। मतलब वो कंडक्टर था वो, उसने कहा ठीक है, आप पहले बस में तो चढ़ो। और मतलब वो छोटी सी थी, वल्ली अम्माई जो थी वो छोटी लड़की थी, तो वो बस में नहीं बैठ सकती थी क्योंकि बस, आपने अगर देखा हो बस में चढ़े हो तो बस का पहला जो स्टेप होता है वो बड़ा ही ऊपर होता है, तो छोटे बच्चे जल्दी से वो चढ़ नहीं सकते। तो कंडक्टर ने क्या किया, सीधे उसको उठाया और बस में बिठा दिया और वल्ली अम्माई जो थी वो बस में बैठ गई। ठीक है, आगे देखते हैं। च मैं अपने आप चढ़ूंगी, तुम मुझे उठाते क्यों हो? मतलब वो वल्ली अम्माई को वो अच्छा नहीं लगा कि कंडक्टर ने उसे उठाया है, तो वो क्या कहता है कि रुको रुको रुको, मैं अपने आप चढ़ूंगी, मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो कंडक्टर बड़ा हंसौड़ था, हंसौड़ मतलब हंसाने वाला, थोड़ा सा फनी जिसे कहते हैं ना, वैसा था। तो कंडक्टर बड़ा हंसौड़ था। अरे अरे मेम साहब, नाराज क्यों होती हो, बैठो इधर पधारो, उसने कहा। मतलब उसने वल्ली अम्माई के साथ थोड़ा सा मजाक किया और उसने क्या कहा कि अरे मेम साहब, मतलब वल्ली अम्माई को उसने बड़े ही चिढ़ाते हुए कहा कि मेम साहब, नाराज क्यों होती हो, गुस्सा मत हो, तुम तो बैठो इधर पधारो, मतलब आओ यहाँ पर बैठो, उसने जगह दी और वल्ली अम्माई को वहां पर बैठने के लिए कहा। ठीक है, तो आगे वो कहते हैं कि रास्ता दो भाई रास्ता, मेम साहब तशरीफ ला रही है। मतलब वो बाकी पैसेंजर को क्या बोलता है कि आप रास्ता दो क्योंकि ये मेम साहब तशरीफ ला रही है, मतलब वो आ रही है, वहां से खुद को ला रही है। तो चिढ़ाते हुए, वल्ली अम्माई को चिढ़ाते हुए कहता है कि मेम साहब तशरीफ ला रही है तो आप रास्ता दे दो, बीच में से हट जाओ। दोपहर के उस समय आने जाने वाले की भीड़ भाड़ घट जाती थी। पूरी बस में कुल 6-7 सवारियां बैठी हुई थी। मतलब दोपहर का टाइम था, वो दोपहर में निकली थी शहर जाने के लिए, तो उस समय जो थे बस में रश जो था वो बहुत कम था, कुछ 6-7 ही पैसेंजर उस बस में बैठे हुए थे। ठीक है, तो भीड़ भाड़ नहीं थी, मतलब ज्यादा रश उसमें नहीं था क्योंकि दोपहर का समय था। आप भी देखते हो सुबह मॉर्निंग का टाइम जब होता है तो बस में ज्यादा रश रहता है क्योंकि लोगों को ऑफिस जाना होता है, कहीं गांव जाना है तो वो भी सवेरे जल्दी निकल जाते हैं, या फिर शाम को भी रश रहता है क्योंकि सबको घर जाना होता है। लेकिन दोपहर का समय जो होता है उस समय थोड़ी सी भीड़ बस में कम रहती थी। सभी मुसाफिरों की नजर वल्ली पर थी। देखो यहाँ पर उन्होंने सवारियां शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने मुसाफिरों
ये शब्द, इस शब्द का इस्तेमाल किया है। तो दोनों का मीनिंग पैसेंजर वही है। मुसाफिर मतलब एक गांव से दूसरे गांव जाने वाले लोग, और सवारियां मतलब गाड़ी में बैठे हुए लोग। ठीक है। सभी मुसाफिरों की नजर वल्ली पर थी और वे सब कंडक्टर की बातों पर हंस रहे थे। मतलब कंडक्टर ने जो अय्यामाई को चिढ़ाया था कि मेम साहब कहकर, तो वो सभी लोग जो थे वो वल्ली को देख रहे थे और हंस रहे थे। वल्ली मन ही मन झेप गई। देखो, झेप गई मतलब संकोच हो गया उसको, थोड़ा सा शर्म आई उसको। तो वो वल्ली मन ही मन जो थी वहां झेप गई। वल्लिया माई जो थी वो थोड़ी सी शर्मा गई, क्योंकि उसको कंडक्टर ने बहुत चिढ़ाया था और उसने सबकी तरफ आंखें फेर ली, मतलब उनकी तरफ इग्नोर करके वो एक खाली सीट थी, एम्प्टी सीट थी, वहां पर जाकर वो बैठ गई। गाड़ी चलाइए बेगम साहिबा, कंडक्टर ने मुस्कुराकर पूछा। उसने 2 बार सीटी बजाई, बस गुजरती हुई आगे को बढ़ी। मतलब उसने फिर से वल्लिया माई, कंडक्टर ने फिर से वल्लिया माई को चिढ़ाया कि गाड़ी चलाएं बेगम साहिबा। और कंडक्टर ने मुस्कुराकर पूछा, मतलब ये सारी बातें वो बड़े हंस हंस कर रहा था कि उसको भी बहुत मजा आ रहा था कि एक छोटी सी लड़की अकेली गाड़ी में चढ़ी है, उसको शहर जाना है, उसको भी अच्छा लग रहा था। तो वो वल्ली को चिढ़ा रहा था और उसने पूछा गाड़ी चलाएं, मतलब अगर आपकी परमिशन है तो हम गाड़ी चलाएंगे। और ऐसे करके उसने 2 बार सीटी बजाई और गाड़ी, बस जो थी वो चल पड़ी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। वल्ली वल्ली सब कुछ आंखें फाड़ कर देख रही थी। आंखें फाड़ कर देखना मतलब बड़े ही आश्चर्यचकित होकर देखना, उसे कहता है आंखें फाड़ कर देखना। ठीक है, मतलब उसको बाहर का जो नजारा था वो बड़ा ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो जिंदगी में पहली बार बस में बैठी हुई थी। ठीक है, वल्ली सब कुछ आंखें फाड़ कर देख रही थी। खिड़कियों से बाहर लटक रहे पर्दे के कारण उसे बाहर का दृश्य दिखने में बाधा पड़ रही थी। वह अपनी सीट पर खड़ी हो गई और बाहर झांकने लगी। मतलब वो छोटी सी लड़की थी तो उसको बाहर देखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, और वहां पर बस को पर्दे लगे हुए थे, धूप अंदर आती है तो उससे सुरक्षित रहने के लिए बसों में जो थे वो पर्दे लगाए जाते थे। तो वो पर्दा जो था वो उसकी आंखों के सामने आ रहा था। तो उसने क्या किया, वो सीधी उस सीट के ऊपर खड़ी हो गई। ठीक है, और बाहर झांकने लगी, मतलब बाहर देखने लगी कि क्या नजारा है, क्या होता है बस के बाहर। इसी समय बस एक नहर के किनारे किनारे जा रही थी। रास्ता बहुत ही तंग था। एक और नहर थी और उसके पार ताड़ के वृक्ष, घास के मैदान, सुदूर पहाड़ियां और नीला आकाश। दूसरी ओर एक गहराई खाई थी जिसके परे दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे खेत। जहां तक नजर जाती हरियाली ही हरियाली थी। देखो, बस से बाहर जब वो देखती है तो उसको क्या क्या नजर आता है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि उस समय, मतलब जब वल्यामाई बाहर देख रही थी, उस समय बाहर क्या था, एक नहर थी, मतलब एक नदी बह रही थी, और नदी के किनारे किनारे से ही वो बस जो थी वो जा रही थी। रास्ता बहुत ही तंग था, मतलब रास्ता जो था, बस जाने का रास्ता जो था वो बड़ा ही छोटा सा था। तंग मतलब छोटा सा था। एक और नहर थी और उसके पार ताड़ के वृक्ष थे। मतलब पहले बीच में से नदी बह रही थी और उसके परे, मतलब उसके दूसरी बाजू में क्या थे, तो ताड़ के वृक्ष थे। घास के मैदान भी थे, मतलब वहां पर अच्छी घास हुई आई थी और वो पूरे मैदान फैले हुए थे। सुदूर पहाड़ियां और नीला आकाश, मतलब दूर तक पहाड़ियां नजर आती थी और ऊपर आकाश नजर आता था। दूसरी और एक गहरी खाई थी, मतलब इस तरफ तो नदी थी और दूसरी और उसके एक खाई थी जिससे परे दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे खेत थे। मतलब लोगों के जो खेत थे वो खाई की तरफ थे। जहां तक नजर जाती हरियाली ही हरी थी, मतलब पहाड़ पर भी हरियाली थी, घास के मैदान भी थे और हरे भरे खेत थे। तो ये सारा नजारा कैसा था, बिल्कुल हरा भरा और बड़ा ही सुंदर नजर आता था। देखो, यहाँ पर उन्होंने पिक्चर में ये सब दर्शाया है। आहा, यह सब कुछ कितना अद्भुत था।
अचानक एक आवाज आई और वह चौंक गई। सुनो मतलब ये सब नजारा जब वो देख रही थी तो वो बड़ी ही खुश थी। मतलब वो सोच रही थी कि ये कितना अद्भुत है। अद्भुत मतलब हमने सपने में भी जो चीज नहीं सोची है उसे ही अद्भुत कहा जाता है। इतना सुंदर था वह। और जब वो सब देखने में मग्न थी उसी समय उसको एक आवाज आई और वो चौंक गई। वो आवाज थी, वो बोल रही थी, सुनो बच्ची, यह आवाज कह रही थी, इस तरह खड़ी मत रहो, बैठ जाओ। मतलब उसे कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि आप खड़ी मत रहो, नीचे बैठकर बाहर का नजारा देखो। वल्ली बैठ गई और उसने देखा कि वह कौन था। वह एक बड़ी उम्र का आदमी था जिसने उसी के भले के लिए यह कहा था, लेकिन उसके इन शब्दों से वह चिढ़ गई। देखो, एक ज्यादा उम्र वाला, मतलब बड़ी उम्र वाला एक बड़ा सा एक इंसान था, आदमी था, जिसने वल्ली अम्माई को कहा था कि इस तरह सीट पर खड़ी मत रहो, नीचे बैठ जाओ। वैसे तो वो उसने ये जो कहा था वो वल्ली अम्माई के भले के लिए कहा था, ताकि वो नीचे गिर न जाए, कुछ लग न जाए, क्योंकि बस जो थी वो पहाड़ से होकर गुजरती थी तो रास्ता बड़ा तंग था। अगर कहीं कुछ इधर उधर हो गया तो वल्ली सीट से गिर सकती थी और उसको चोट आ सकती थी। इसीलिए वो आदमी उसे कह रहा था कि आप सीट पर बैठ जाओ, खड़ी मत रहो। लेकिन वल्ली अम्माई बाहर देखने में इतने मग्न थी कि उसको ये बीच में टोकना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो चिढ़ गई। यहाँ कोई बच्ची नहीं है, उसने कहा, मैंने पूरा भाड़ा दिया है। मतलब उसको गुस्सा आया कि वो बोला ना, सुनो बच्ची, उसको लगा कि ये मुझे छोटी सी बच्ची समझ रहा है, इसलिए उसे गुस्सा आया था। और उसने कहा, यहाँ कोई बच्ची नहीं है, मतलब मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हूँ। क्यों बड़ी हूँ? तो मैंने पूरा भाड़ा दिया है। मतलब जैसे आपने कभी सुना होगा कि छोटे बच्चे होते हैं उनका हाफ टिकट होता है, बड़े इंसान होते हैं उनका फुल टिकट होता है। जब हम ट्रेन से गुजरते हैं, बस से गुजरते हैं, उस समय ऐसा होता है। इसलिए उसने कहा कि मैं कोई हाफ या आधा भाड़ा देकर नहीं जा रही हूँ, मैंने पूरा भाड़ा दिया है, तो मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं भी बड़ी हूँ। तो कंडक्टर ने भी बीच में पढ़ते हुए कहा, जी हाँ, यह बड़ी बेगम साहिबा है। क्या कोई बच्चा अपना किराया अपने आप देकर शहर जा सकता है? मतलब फिर से वो कंडक्टर जो था वह वल्ली अम्माई को चिढ़ा रहा था कि ये जो लड़की है वह छोटी थोड़ी ना है, क्योंकि उसने खुद ने भाड़ा दिया है, किसी और ने भाड़ा नहीं दिया। आप मतलब वो उस आदमी को कहता है, आप भी सोचो कि कोई छोटी सी लड़की ऐसा खुद का भाड़ा देकर गांव जा सकती है क्या? लेकिन ये जो लड़की है वो बड़ी है, वो तो बेगम साहिबा है, उसने अपने खुद का भाड़ा दिया है और वो जा रही है। वल्ली ने आंखें तरेर कर उसकी ओर देखा, मतलब ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करते हुए उसकी ओर देखा। किसकी ओर? तो वो कंडक्टर की ओर। ओके, मैं बेगम साहिबा नहीं हूँ, समझे? और हाँ, तुमने अभी तक मुझे टिकट नहीं दिया। मतलब वो कहती है, वो चिढ़ा रहा है ना उसे, बेगम साहिबा बेगम साहिबा, तो वो कहती हूँ कि मैं बेगम साहिबा नहीं हूँ, समझे? और हाँ, तुमने अभी तक मुझे टिकट नहीं दिया है। मतलब वो याद दिलाती है कि मैंने बस में चढ़ते ही तुम्हें पैसे दिए थे, लेकिन तुमने अभी तक मुझे टिकट नहीं दिया है, ठीक है? अरे हाँ, कंडक्टर ने उसी के लहजे की नकल करते हुए कहा और सब हंसने लगे। इस हंसी में वल्ली भी शामिल थी। मतलब कंडक्टर जो था तो उसकी लहजा, मतलब उसकी नकल की, उसी के आवाज में उसने कहा, अरे हाँ। कंडक्टर ने उसी लहजे से उसकी नकल की, और जब उसकी नकल की कंडक्टर ने तो सभी जो पैसेंजर थे वो हंसने लगे। और अब वल्ली अम्माई को भी समझ में आया था कि ये कंडक्टर जो है वो मुझे चिढ़ाता है लेकिन अच्छा इंसान है, तो वो उस हंसी में वो खुद भी शामिल हो गई थी। कंडक्टर ने एक टिकट फाड़ा और उसे देते हुए कहा, आराम से बैठो, सीट के पैसे देने के बाद कोई खड़ा क्यों रहे? मतलब वो कहता है कि तुमने तो पूरे पैसे दिए हैं टिकट के, तो फिर आप खड़ी क्यों हो? जब कोई इंसान टिकट के पैसे देता है तो वो क्या करता है? सीट पर बैठा रहता है। तो इसलिए वो कंडक्टर से कहता है कि आपने टिकट के पैसे दिए हैं, टिकट फाड़ा है, तो आराम से आप सीट के ऊपर बैठ जाओ। मुझे यह अच्छा लगता है, वह बोली। मतलब उसको लगता है, वो कहती कि ठीक है सीट पर बैठना, लेकिन मुझे खिड़की से बाहर देखना जो है वो अच्छा लगता है। खड़ी रहोगी तो गिर जाओगी,
चोट खा जाओगी, गाड़ी जब एकदम मोड़ काटेगी या झटका लगेगा तभी मैंने तुम्हें बैठने को कहा है बच्ची। मतलब वो कहता है कि अगर तुम सीट पर खड़ी रहती हो तो गाड़ी जो है वो किसी मोड़ पर आती है तो थोड़ी हिलती है तो तुम गिर जाओगी, या फिर किसी वजह से गाड़ी को झटका लगता है तो भी तुम गिर सकती हो, तुम्हें चोट लग सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें बैठने के लिए कह रहा हूँ। मैं बच्ची नहीं हूँ, तुम्हें बता दिया ना। उसने कूड़ कर कहा, मैं 8 साल की हूँ। मतलब उसने कहा कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। उसने कुड़कर मतलब गुस्से में आकर कहा कि मैं 8 साल की हो चुकी हूँ, अब मैं छोटी नहीं हूँ। क्यों नहीं, मैं भी कैसा बुद्धू हूँ, 8 साल, बाप रे। मतलब वो कंडक्टर उसे फिर से चिढ़ा रहा है कि क्यों नहीं, आप तो बहुत बड़ी हो, ये तो मुझे पता ही नहीं चला, आप तो 8 साल की हो। अरे बाप रे, और मैं बुद्धू हूँ, मुझे पता नहीं चला कि आप बड़ी हो। ये कहकर वो उसे चिढ़ाता है। बस रुकी, कुछ नए मुसाफिर बस में चढ़े और कंडक्टर कुछ देर के लिए व्यस्त हो गया। वल्ली बैठ गई। उसे डर था कि कहीं उसकी सीट ही न चली जाए। एक बड़ी उम्र की औरत और उसके पास बैठ गई। मतलब एक स्टैंड पर बस रुक गई। कुछ नए मुसाफिर, कुछ नए पैसेंजर्स बस के अंदर चढ़े और कंडक्टर उसको टिकट देने में वो बिजी हो गया। ठीक है, और वह अब नए नए लोग आ रहे थे तो वो थोड़ी डर गई कि अगर वो सीट पर नहीं बैठी तो उसकी सीट जो थी वो कोई और ले लेगा, इसलिए वो वहां पर चली गई। तभी एक बड़ी सी औरत, मतलब बड़ी उम्र, थोड़ी सी बूढ़ी हो रही है ऐसी औरत आई और उसके बाजू वाले सीट में बैठ गई। और वो पूछती है, अकेली जा रही हो बिटिया? जैसे ही बस चली उसने वल्ली से पूछा, मतलब उसके बाजू में बैठकर वो कहती है कि तुम अकेली जा रही हो शहर? हाँ, मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे पास टिकट है। उसने अकड़कर सीना तीखा जवाब दिया। मतलब वल्ली क्या बोली, हाँ हाँ मैं अकेली जा रही हूँ और मेरे पास टिकट भी है। ऐसा बड़े ही तुनक कर, मतलब ऐसा गुस्सा होकर उसने कह दिया। हाँ हाँ, शहर जा रही है 30 पैसे का टिकट लेकर। कंडक्टर ने सफाई दी। मतलब कंडक्टर ने फिर से उसे चिढ़ाया और कह रहा है, अरे नहीं, वो अकेली नहीं, वो तो शहर जा रही है और उसने पूरे टिकट के मतलब 30 पैसे दिए हैं। तो वल्लिया माई देखो क्या बोलती है, आप अपना काम कीजिए जी। वल्ली ने टोका, लेकिन उसकी अपनी हंसी भी छूट रही थी। मतलब जब कंडक्टर उसको चिढ़ा रहा था तो उसने कहा कि आप मुझे मत चिढ़ाइए, आप अपना काम कीजिए, और वो भी उस हंसी में शामिल हो गई थी। तो हमने यहाँ तक पाठ पढ़ा, इसकी वर्कशीट अब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आपने देखा कि एक छोटी सी बच्ची थी, उसका नाम वल्लिया माई है, और वो पहली बार बस से बाहर आ रही थी, मतलब घूमने जा रही थी, और वो समझ रही थी मतलब कैसा नज़ारा है, क्या है। कंडक्टर, उसने सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो कलेक्ट कर ली थी और जा रही थी। जाते जाते समय उसको क्या नज़ारा दिख रहा था, लोग कैसे मिल रहे थे, ये सारी बातें हमने यहाँ तक देखी। आगे क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। If you like our videos, do share them and subscribe to our channel. If you want awesome quizzes, write to us. Keep watching and keep learning with Walnut.